10 PQ can be written as what? 2 into 5 is 10. Yes, correct. So 10 PQ we can write it as? So 2. Yes, 2 into 5 into P into Q. Very good. Correct. See ya. After this, next one also tell me. See ya. 20 QR. 20 So QR. 2 into 10. 2 into 10 डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे? नहीं. हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? 2 into 2. Correct. 2 into 2. After this? Into 5. Yes, perfect. Very good. So that's why I told you कि हमेशा रफ वर्क जब भी करेंगे ना तो हम लोग को क्लियर कट पता चलेगा क्या लिखना है. तो डायरेक्ट कभी जाएंगे जब भी आगे हम लोग स्मार्ट बनेंगे, एकदम एक्सपर्ट बनेंगे, मास्टर बनेंगे, तभी डायरेक्ट जाएंगे. ठीक है. सो यस, वेरी गुड. सी 20 QR. देखो स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रहा है तो ऑलवेज डू द रफ वर्क. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो. 2 से डिवाइड करते जाना है. 2 10s, 2 5s, and 5 1s. That means this 20 can be written as 2 into 2 into 5. QR को लिखेंगे Q into R. Right? Yes. Very good, Sia. Thank you. Coming to one more student. Om is very much excited to give the answer. Yes. Suryansh Singh. Beta, can you please unmute yourself? Suryansh Singh कहाँ पे गया? Yes, Suryansh. Sir, 30 RP. 30 RP. Yes, third term is there. So 30 को अगर सूर्यांश हम लोग फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज, तो यहाँ पे रफ वर्क में टेल मी 2 into how much is 30? 215. Perfect. 215s are. Yes. Then 15 2 के टेबल में आएगा क्या? No sir. 3 के टेबल में आएगा. 3 के टेबल में. 3. 3 into how much is 15s? 3 5s are 15. 15. Yes. Correct. 3 5s are. And after this? 5. Very good. That means, tell me, Suryansh, this 30 RP can be written as what? 2 into 3 into 5 into R into P. Perfect. Very good, Suryansh. Thank you, sir. Yes. Okay. After this, I'm coming to Arya Shetty. Yes, sir. Tell me, now all these three terms, तीनों terms में what is common? Sir, 2. Perfect. 5. Common. And sir, only those two. yes, 2 is there and 5 is there. Only these two terms are common. If you check, P is there but तीनों में P नहीं है. Q is there but तीनों में Q नहीं है. R is there but तीनों में R नहीं है. So the common is 2 and 5 only. That is the answer is 2 5s are. Perfect, Arya. At the end, we are going to keep it in the box for better presentation. Very simple question, students. So I hope you all are very much clear with this type of questions. ये तो भी बच्चा भी solve कर सकता है. बहुत simple है, right, Idisha? Yes, great. Okay, so shall we proceed with the next type of question, students? Yes, great. Okay. Yes. Itisha, can you please read the question what is given? Yes, sir. Yes, Itisha. Factorize the following expression: 7a square plus 14a. Yes, correct.
सो नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या करना है. Tell me students, what is the difference between this sum and the sum which we have studied before this? What is the difference? Difference क्या है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन? Yes, perfect, very good. You can see there is plus sign for there. Yes, Om, I'm coming to you. Wait, यहाँ पे सबसे पहले देखो, दोनों के इन बिटवीन प्लस साइन इज देयर, राइट. अब तक क्या हो रहा था, आप लोग को अलग अलग टर्म्स दिए थे, 7a² अलग दिया था, कॉमा 14a अलग दिया था, अलग अलग टर्म्स थे. राइट नाउ आपको एक साथ प्लस या फिर माइनस साइन के साथ देंगे. देयर आर सम ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड ऑल. सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, स्टार्टिंग का स्टेप सेम रहेगा, दोनों को हम लोग अलग अलग स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे. Yes, perfect Anshita. We are having expression over here, 7a² plus 14 expression है, right? So first of all what we are going to do is 7a² जो अवेलेबल है ना, उसको पहले हम लोग लिखेंगे and उसको फैक्टराइज करेंगे. 7 is odd number, तो 7 as it is रहेगा. a² that means a into a. Coming to 14a, 14a को हम लोग स्प्लिट करेंगे. 14 is nothing but 2 7s or we can say 7 into 2 into a, right? अभी सबको फैक्टराइज करने के बाद स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन जो हम लोग को दिया था. एक्सप्रेशन क्या दिया था, 7a² plus 14a. now in place of this 7a² उसका हम लोग आंसर लिखेंगे. 7a² का आंसर, 7a² का आंसर क्या है, 7 into a, 14a का आंसर क्या है, 7 into 2 into a. अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है. व्हाट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, दोनों में कॉमन क्या है, इट इज 7. और कुछ कॉमन है, यस, a is also there, that is repeating, right? so we are going to take 7a common. 7a को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है. 7 into a को ब्रैकेट में लिखा जो कॉमन है. एंड द रिमेनिंग पार्ट, अभी जो भी रिमेनिंग है ना, उसको भी हम लोग को लिखना पड़ेगा इन अनदर ब्रैकेट. सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, ब्रैकेट में चेक करना है 1 by 1. हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स जो थे 7 and a उसको लिख दिया. नाउ फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग क्या है, a इज रिमेनिंग, तो वी हैव रिटन a. Okay, so 7a² में से we have taken 7a common. What is left? a is left. उसके बाद साइन लिखना हम लोग को प्लस वाला साइन before going to second term. We are going to write plus, right? Don't forget to write this plus sign over here. 14a में से we have taken 7 and a common. So what is the remaining over here? क्या बचा है? 2 is left. So we are going to write plus के बाद 2 bracket close. You all can write the same brackets, राउंड ब्रैकेट में दोनों लिखोगे, बॉक्स ब्रैकेट में लिखोगे, चलेगा. दिस इज द आंसर. आगे जाके हम लोग जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into a can be written as 7a. a plus 2 we can't add, that is unlike terms, so let us keep it as it is only. So yes, this is the final answer, and at the end we are going to keep it in the box for better presentation. ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे जाके हम लोग डायरेक्टली कॉमन कैसे निकालने वो पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम लोग छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. अगर आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक हो रहा है कि 7a² एंड 14a दोनों में कॉमन क्या है, वी कैन डायरेक्टली से दोनों में कॉमन इज 7 एंड a, तो उसको बाहर निकाला एंड जो भी रिमेनिंग है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. 7a² में से व्हाट इज रिमेनिंग, a is remaining because we have taken 7a common, plus 14a में से we have taken 7a common. तो 7 into how much is 14, 2 जा, तो 2 लिखा, right? So students, I am giving you time of 1 minute to write the answer in your notebook. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. प्लस साइन कभी देना है, मल्टीप्लिकेशन कभी देना है. सो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 minute.
to write the answer of this question. If anybody has any doubt, kindly let me know in the chatting box. If it is clear, text me clear. We are going to solve few more questions of the same type, so don't worry. एक ही क्वेश्चन में अगर पूरा 100% क्लियर नहीं हुआ है, एटलीस्ट आई बिलीव दैट कि 50% तो क्लियर हुआ रहेगा, राइट? यस, ग्रेट, वेरी गुड. Yes, Harsh, Kalash, kindly rename yourself Manthan, Moksha, along with your center name. Shiven, Krisha, Anshi. Yes, okay. Last 30 seconds, students, for writing. यस, नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, बी केयरफुल. कभी साइन देना है, कभी साइन नहीं देना है. अंशी, ओम, बी केयरफुल. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइम. धीरे धीरे पता चलेगा कैसे करना है, ठीक है? लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. दिस क्वेश्चन नाउ, बी केयरफुल. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा है, राइट? So now what we are going to do is, first of all, 20L square m. Now let us find the prime factors of 20. 20 के prime factors अगर आप लोग को डायरेक्टली आते हैं, you can write. Otherwise always what I suggest is, बाजू में रफ वर्क में करो, then लिखो, because छोटा सा भी मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर हो. तो बी केयरफुल. 20 को अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइज करोगे, इट इज नथिंग बट 2 10s, 2 5s, 5 1s. ऑलवेज प्राइम फैक्टराइज रफ वर्क में करो, एंड लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग को लिखना है. सो दिस 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5. L square, that is L into L, M into M. इतना लिखा, इतना तो सबको आता है. कमिंग टू सेकेंड टर्म, 30ALM, इसको फैक्टराइज करेंगे. 30 2 के टेबल में आएगा, 2 15s, 3 5s, 5 1s. So this 30 can be written as 2 into 3 into 5, and ALM as it is लिखना है, into A into L into N. राइट, यहां तक तो सबको आता है, राइट? यहां तक सबको आता है. यस, नाउ द मेन चैलेंज ओवर हियर इज, कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है? साइन में, प्लस माइनस ब्रैकेट इनटू कभी लिखना है, बड़ा से ध्यान देना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन हम लोग को दिया उसको एज इट इज लिख देने का, ठीक है? दोनों में हम लोग चेक करेंगे कॉमन क्या है. व्हाट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स? दोनों में कॉमन क्या है? 2 इज देयर, तो उसको लिखेंगे. और क्या कॉमन दिख रहा है? यस, 5 इज देयर, L is there, and M is there. So first step is we have written the common. दोनों में जो भी कॉमन उसको एक ब्रैकेट में लिखा. जो भी कॉमन है उसके इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन, 2 into 5 into L into M, ये सब कॉमन है. नेक्स्ट, नाउ अभी इसके बाद जो भी रिमेनिंग है, जो भी बचा हुआ है, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है. देयर इज नो साइन इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा. कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन. ओके, सो आफ्टर दिस अभी हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स? ये हम लोग ने कॉमन निकाल दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग वन क्या है.
अगर आप लोग देखो वहां पे हाईलाइट करके रखा रहेगा ना, इसके लिए मैंने बोला था पेंसिल यूज करो, जो भी कॉमन है उसको मार्किंग करके रखो, और जिसको मार्किंग नहीं किया है दैट इज द लेफ्ट पार्ट जो बचा हुआ है, अभी उसको सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, कोई भी साइन नहीं देना है, इनटू साइन मतलब ब्रैकेट। सो फर्स्ट टर्म में से बचा क्या है, 2 एंड एल इज रिमेनिंग, फर्स्ट टर्म में से 2 एंड एल इज रिमेनिंग, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग पार्ट लिख दिया, उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस साइन, साइन कौन सा है, प्लस साइन। तो सेकंड टर्म के पास जाने से पहले वी नीड टू राइट दिस प्लस साइन ओवर हियर, यहाँ पे इन बिटवीन प्लस साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। 30 ALM में व्हाट इज रिमेनिंग, जो कॉमन नहीं था, जो भी बचा हुआ है उसको लिखना है। तो 30 ALM में 3 एंड A इज रिमेनिंग, तो उसको लिखना है 3 into A, दैट्स इट। वंस अगेन आई रिपीट, पहले दोनों में जो भी कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, जो रिमेनिंग है फ्रॉम द फर्स्ट टर्म में से जो भी रिमेनिंग है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा स्टार्टिंग में, नो साइन इन बिटवीन, मल्टीप्लिकेशन साइन। जैसे आप लोग सेकेंड टर्म के पास जाओगे रिमेनिंग वाला लिखने के लिए, तो साइन चेक करना, इन बिटवीन साइन कौन सा है, प्लस। सो प्लस व्हाट इज रिमेनिंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म, 3 एंड A इज रिमेनिंग। अगर यहाँ पे आप लोग हाईलाइट करके रखोगे ना कॉमन को, तो रिमेनिंग कौन से आप लोग को इजीली पता चलेगा, दैट्स इट। आगे अभी जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट 2 5 are 10 LM, फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट प्लस के पहले प्लस के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into L 2L, 3 into A 3A, that's it, this is the final answer. We're going to keep it in the box for better presentation. स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है ना, जितना इजी है उतना आगे जाके थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। अगर आप लोग का बेसिक क्लियर होगा ना तो आगे आप लोग को बहुत इजी लगेगा, बट अगर आप लोग बेसिक में कहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करने जाओगे, डायरेक्ट आगे जाओगे, तो माइट बी देयर विल बी सम प्रॉब्लम। सो ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यस अंशी, आई होप यू आर very much clear with the concept now. Yes, Zil, I will come to you for the next question. Yes, now Om is saying कि सर अगर क्वेश्चन में दोनों साइन होगा तो प्लस भी है माइनस भी है, तभी क्या करेंगे। डोंट वरी, विल कम टू दैट पॉइंट, आगे आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आफ्टर विच वी आर गोइंग टू टेक वन स्मॉल ब्रेक, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे सब पॉजिटिव है, ओके। सो जिनको 90% क्लियर हुआ रहेगा, 100% तक क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बड़ा सा लिखना, ठीक है। नाउ फॉर दिस आई नीड समबडी ऑफ यू टू हेल्प मी, वन बाय वन करके आप लोग को हेल्प करना है, ठीक है। सो आई एम कमिंग टू यस आर्य शेट्टी। Yes, sir. Yes, Sir, Arya. Yes. yes. Sir, x to y z. So, sir, x into x into y into z. Perfect. Very good. X square means x into y into z. Right? Now, second one, Arya. X into y into z. Correct. So यहाँ पे you can see x is there, y is coming 2 times. Right? So x लिखा, y को 2 times लिखेंगे, y into z. Coming to last one. Yes. X into y into z. Yes, correct. Very good. X into y into z is coming 2 times. So z into z. Okay. Very good, Arya. Wait. Now, after this, now be careful.
यहां तक तो आई होप सबको आता है, यहां तक तो सब लोग कर सकते हैं, राइट। यहां तक हम लोग जो पहले क्वेश्चन करते थे वैसे सेम हो गया। अभी इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, तीनों में कॉमन देखना है, व्हाट इज कॉमन, ठीक है। यस सिया, टेल मी व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री टर्म्स, वन बाय। X, Yes, first of all, x is common. Yes, so let us write down x. Anything Y, y is there, so into y लिखना है, and into Z. into z is also common, तो z लिखेंगे। और common है क्या? नहीं, No. right. Now after this, अभी common factors निकालने के बाद, what is remaining? We'll check one by one. यहाँ पे कोई साइन देना है क्या सिया? No. नो, दैट मीन्स ब्रैकेट, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, राइट। तो Yes. अभी क्या लिखना है? ओके, आई एम कमिंग टू अनदर स्टूडेंट, थैंक यू सिया। अभी ब्रैकेट में हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? अर्पिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस अर्पिता, टेल मी फर्स्ट टर्म में से वी हैव टेकन x एंड y कॉमन, तो व्हाट इज रिमेनिंग? X and Z. करेक्ट, x एंड z विल बी रिमेनिंग, तो उसको लिखेंगे x इंटू z, ठीक है। नो, z इज नॉट रिमेनिंग, z को तो हम लोग ने कॉमन निकाल दिया, राइट। या सो x इंटू y इंटू z में से वी हैव टेकन x y z कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? ओनली x इज लेफ्ट, राइट। नाउ कौन सा साइन देना पड़ेगा? Plus Y. प्लस साइन, राइट, प्लस साइन। प्लस साइन के बाद नाउ विल कम टू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से वी हैव टेकन x y z कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट अर्पिता? Y. y is left, yes, so we'll write y. And coming to last one, last term, y के बाद कौन सा साइन देना पड़ेगा? Addition. yes, plus sign before going to the third term. And what is left from the third term अर्पिता? Z. yes, x y कॉमन निकाल दिया, z कॉमन निकाल दिया, वन मोर z इज देयर, तो उसको लिख देना इसमें। वेरी गुड अर्पिता, थैंक यू। वेदांत झा, coming to last step, please unmute yourself. So Vedant, tell me, Yes. फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके व्हाट इज द आंसर? X, Y, Z. एक्स वाई जेड, राइट। एंड सेकेंड, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? X, Y. नो, वी कांट ऐड No, बिकॉज no. अनलाइक No. दैट, राइट। सो यस, वेरी गुड वेदांत। सो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, x plus y plus z एज इट इज लिखना है, आई एम गोइंग टू कीप इट इन बॉक्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोग ने आंसर किया स्टेप बाय स्टेप, जो पहले क्वेश्चन में किया है वही यहाँ पे भी सेम किया है, खाली एडवांस लेवल में हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे टर्म्स बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप ऐड होते जाएगा। तो इसके पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? यस, ओके।